Hello students, welcome to today's session. Myself Pragya Jain and I'll teach you computer. As you all know that right now the situation is very difficult. Due to this, school are not open. So we have started online classes so that you all will be safe and continue your study. And I know you all are very excited and I'll explain you each and everything. If you get any doubt, so please ask me without any hesitation. So let's start. Our first chapter, a chapter name is Fundamental of Computer. In this chapter we will study what is computer system क्या होता है, parts of a computer system, how does computer system work, computer कैसे work करता है, characteristics of a computer की क्या क्या characteristics है, and application of a computer, it means कि computer कहाँ कहाँ use होता है, ये सभी हम इस chapter में पढ़ेंगे. So let's start. Our first topic is what is computer system? So the term computer is derived from the Latin word computer, which means to calculate. जो term computer है वो Latin word computer से derive की गई है, जिसका मतलब होता है calculate. What calculate? Yes. Now computer is an electronic device which takes data as input, process it and give us information as output. It means कि जो computer है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रो फैक्ट मतलब डेटा को लेता है फ्रॉम द यूज़र. किससे लेता है? यूज़र से. एंड देन उसकी प्रोसेसिंग करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड देन it gives us final result, that is information and output. Okay, it can process both numerical and non-numerical, that is arithmetic and logical calculations. Or the working principle of a computer can be summarized as input, process and output cycle. इसके 3 working principle है, that is input, process and output. As you can see in this picture, that input, process and output. Input means raw facts जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं and on the basis of that computer उसकी क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है through the CPU and then it gives us final result, it means output. हम इनपुट किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. व्हाट आर दैट इनपुट डिवाइसेस? स्कैनर, कीबोर्ड, वेब कैमरा, joystick, these all are input devices. Through these input devices we give input to the computer. Yes, and then computer process it through the CPU. किसके थ्रू करता है? CPU के थ्रू. And then it give us information as output. किसके थ्रू वो हमें output देता है? Monitor, printer and speaker. So these all are output devices. Got it? Now our next topic is parts of computers. So there are 4 parts of computer system as you can see in this picture: data, hardware, software and user. अब ये चारों क्या होते हैं हम इसे अब डिटेल में समझेंगे. So first is hardware. It consists of a mechanical parts that make up the computer as a machine. Hardware क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर. जो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. यस, द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द फिजिकल डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर. जो भी कंप्यूटर के साथ में फिजिकल पार्ट अटैच होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. अब जो दिस डिवाइस आर रिक्वायर्ड फॉर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा. ये डिवाइस हमें क्यों रिक्वायर होते हैं? इनपुट के लिए, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा की प्रोसेसिंग के लिए ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं. यस, अब कौन कौन से होते हैं हार्डवेयर? कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, प्रिंटर, प्रोसेसर, दिस ऑल आर हार्डवेयर. गॉट इट? हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर. यस. नाउ नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन.
ये क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और किस तरीके से वो टास्क परफॉर्म किया जाएगा। यस, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड हाउ दिस टास्क आर टू बी परफॉर्म। वो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है और किस तरीके से वो टास्क परफॉर्म किया जाएगा। गॉट इट? सो दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन। जो हार्डवेयर होते वो किसी भी टास्क को अपने आप से परफॉर्म नहीं करते, उन्हें हमें बताना पड़ता है कि उन्हें क्या टास्क को परफॉर्म करना है, कि उन्हें क्या काम करना है, ये हमें उसे बताना पड़ता है। यस, so the hardware needs to be instructed about the task to be performed। तो हार्डवेयर को क्या चाहिए रहता है, इंस्ट्रक्शन चाहिए रहता है कि उसे क्या टास्क परफॉर्म करना है और किस तरीके से वो टास्क परफॉर्म होगा। सो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर अबाउट दिस टास्क। और सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे ये टास्क परफॉर्म करना है और किस तरीके से करना है। Different software can be loaded on the same hardware to perform different kind of task। हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। Got it? Now next is data. Data can be defined as isolated values or raw facts which by themselves do not have much significance। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, डेटा क्या होते हैं, डेटा आर द रो फैक्ट्स। डेटा रो फैक्ट्स होते हैं, यस, जिनकी कोई भी अपने आप में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला 29 सितंबर और 1994। सो ये अलग अलग वर्ड है, इनका अपने आप में कोई भी मच ज़्यादा मीनिंग नहीं निकल रहा है। पर जैसे मैंने अभी आपको बोला 24 सितंबर 1999, सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक डेट है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा आर द रो फैक्ट्स, जिसकी अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, वो कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है एंड देन कंप्यूटर हमें क्या देता है, फाइनल रिजल्ट देता है। इट मीन्स वैलिड इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है यूज़र। यूज़र को कौन होते हैं, यूज़र आर द पीपल हु राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यूज़र वो होते हैं जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अगर अभी हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस पर कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर यूज़र। अब वो कोई भी हो सकते हैं, लाइक प्रोग्रामर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, सिस्टम एनालिस्ट एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर। These all come into this category. In which category? User category. Got it? Now our next topic is how does a computer work? कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। So as you already know that computer is an electronic device. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, yes, which accept data, process data and then generate output and store the data। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है कि वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, जो भी डेटा हम उसे देते हैं वो उस डेटा को एक्सेप्ट करता है, देन उस डेटा की क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है एंड देन क्या करता है, जनरेट द आउटपुट, इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, फाइनल रिजल्ट को जनरेट करता है। और जो भी ये डेटा है ये सब वो किस में स्टोर करता है, उसकी स्टोरेज मेमोरी में स्टोर करके रखता है। यस, सो दीज आर द कंसेप्ट, द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कैसे वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इन दिस वे द कंप्यूटर इज वर्किंग। नाउ फर्स्ट इज इनपुट। इनपुट क्या होता है, इनपुट इज द रो इंफॉर्मेशन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। जो इनपुट होता है वो रो मटेरियल होता है, रो फैक्ट होते हैं जो कि हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं। किसके थ्रू एंटर करते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, यू ऑलरेडी नो, अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। यस, इनके थ्रू हम डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। यस, एंड देन प्रोसेस।
प्रोसेस क्या होता है? द कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डेटा। कंप्यूटर क्या करता है कि जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो उसकी प्रोसेसिंग करता है। For this, it performs some action on the data by using the instructions or programs given by the user. वो क्या करता है प्रोसेसिंग के लिए? उसको एक्शन परफॉर्म करना होता है. So on the basis of that data or that instruction which we have given to the computer, on the basis of that वो क्या करता है? एक्शन को परफॉर्म करता है, डेटा की प्रोसेसिंग करता है. Yes. So the action could be an arithmetic or logic calculation, editing, modifying a document, etc. Yes, वो action कुछ भी हो सकता है. अर्थमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशन हो सकता है, एडिटिंग हो सकती है, या फिर डॉक्यूमेंट की मॉडिफाइंग हो सकती है. यस, सो द डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड द आउटपुट आर स्टोर्ड टेम्परली इन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. जब प्रोसेसिंग होती है तो प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है एंड जो आउटपुट आता है वो टेम्परली कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी में. यस, नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट. Output is the processed data given by a computer after following the instructions given by the user for processing of the data. Output क्या होता है? Output processed form of data. डेटा की processed form होती है. Yes, कि जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसकी वो प्रोसेसिंग करता है एंड जो फाइनल रिजल्ट निकलता है, इंफॉर्मेशन निकलती है, वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है. येस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिजल्ट. हम इंफॉर्मेशन को एक रिजल्ट भी बता सकते हैं. येस, रिजल्ट एक वैलिड इंफॉर्मेशन है एंड यू कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर यूज़. हम इस रिज़ल्ट को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोरेज डिवाइस में भी स्टोर कर सकते हैं. येस, एंड द आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर. मॉनिटर एंड प्रिंटर क्या है? मेजर आउटपुट डिवाइस है, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था. यस, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंप्यूटर सिस्टम, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे और मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी दूंगी. वो एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है. सो आज के लिए इतना ही. टिल द नेक्स्ट क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.